Hello, investors and traders. Today we are talking about price to earning ratio. So, how is this price to earning ratio is used in determining whether to buy a particular stock or sell a particular stock, whether the stock is underpriced or overpriced, whether it is expensive or cheap. So most of these investors, high net worth investors, mutual funds, FIs, etc., they use price to earning ratio as one of the parameter. That is not the only parameter for deciding to buy a stock. It is one of the parameters which shows you that what is the stock, which is whether it is in the expensive category or whether it is in the cheaper category. But it is just gives one of the parameter. It is not the only parameter for decision making. So let us see what is the price to earning ratio, P ratio. So it is a stock valuation metric which compares company's share price to its earning price. So company makes profit. For example, for a year, company has made a profit of 100, and then its equity capital is 25. So you divide 100, that is the earnings per share. So what is the earnings? 100 crores divided by per share. So 25 shares. So 4 is the P. So that is the simple formula for price to earning ratio. So price to earning ratio, because it is used by a lot of analysts in while valuing the stocks. So when you are doing valuation of the stocks, then you are using the price to earning multiple. So they normally look at a long term valuation trends. Like for example, PE, price to earning ratio, if you see for any sector or any group of stocks, okay, is varies. Uh, if you see multinational companies like Colgate, Nestle, Hindustan Unilever, Gillette, etc., PNG, etc., so the price to earning ratio is very high. Now here what is happening, because all these companies are majority held by multinational companies. So what happens is that there is more confidence of investors whenever you have around 70%, 75%. So Hindustan Unilever has around 68% foreign stake. So whenever there is a foreign stake, automatically the price to earning ratio is higher, because people are giving more higher multiple. They are ready to buy at little expensive valuation, because there is a comfort that the foreign stakeholder is will look after the company, infuse more funds into the company, or introduce more products, more brands into the category. So this is all related to how investors see companies fundamentals, future fundamentals. So P ratio, I already saw the market value per share divided by earning per share. The stock price we can find on the generally, and whenever you see EPS, like for example now you are on 31st March 2024. Okay, so you have one full year completion. So as of March you can get the P. बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जून आएगा, सितंबर आएगा, दिसंबर आएगा, तो क्वार्टरली रिजल्ट आते रहेगा. तो अगर आप मार्च का ईपीएस पकड़ोगे, ओके, तो इट विल गिव अ ट्रेलिंग 12 मंथ्स. ओके, ट्रेलिंग 12 मंथ्स. तो इसमें क्या होता है कि अगर आप मार्च का लेते हो तो एक पी रेशियो आएगा, बिकॉज मार्च का अर्निंग पर शेयर अलग है. अगर आपका जून क्वार्टर और सितंबर दिसंबर क्वार्टर में ज़्यादा ग्रोथ आया, ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ गया, तो ये 9 महीने का ईपीएस देखोगे तो मार्च का ईपीएस से ज़्यादा है. लेकिन अगर मार्च का अगर ईपीएस आप पकड़ोगे तो उसका पी रेशियो अगर आप ले लोगे तो वो हिसाब से पी अलग रहेगा. ओके, बिकॉज पी विल बी हाई, बट अगर वो कंपनी ने अच्छा ग्रोथ किया तो पी विल रिड्यूस. जैसे ट्रेंड कंपनी है, ट्रेंड का पी रेशियो इज मोर देन 100, लेकिन ट्रेंड इज स्टिल गोइंग अप. ना वाई? बिकॉज उसका ग्रोथ 51% है, सेल्स ग्रोथ 51% है, प्रॉफिट ग्रोथ अराउंड 50% है, 100% है. तो क्या होता है कि पी रेशियो में ना, अगर आपको उसका सेल्स ग्रोथ का क्लैरिटी है, देन एंड प्रॉफिट्स का क्लैरिटी है, और वेरी हाई ग्रोथ है, तो ग्रोथ के ऊपर पी रेशियो डिपेंडेंट होता है. अगर वेरी हाई ग्रोथ है, लेकिन वो हर पी रेशियो एज्यूम क्या करता है कि वो ग्रोथ हर हर साल में वो रिपीट होगा. यही यही उसका एजम्पशन होता है. अगर ग्रोथ रिपीट होगा तो पी रेशियो मेंटेन रहेगा, हाई हाई मेंटेन रहेगा. क्योंकि देखो, अगर ऐसा है कि कंपनी अभी प्रॉफिट बना रही है, लेकिन नेक्स्ट ईयर 100% ग्रोथ है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर 100% ग्रोथ इन प्रॉफिट है, नेक्स्ट ईयर 100% ग्रोथ, तो पी रेशियो ऑटोमेटिकली नीचे आते रहेगा. ठीक है ना? तो वो ऑटोमेटिकली वो उसका लोगों को, लाइक हुएवर इज एनालाइजिंग, उसको पता है कि पी रेशियो कम होने वाला है. सो अकॉर्डिंगली दे विल बाय दैट स्टॉक, बिकॉज दे नो दैट बिकॉज इट्स अ हाई ग्रोथ कंपनी, उसका ईपीएस बढ़ने वाला है. और अगर ईपीएस बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली उसका पी रेशियो कम हो जाएगा. So that is why there are a lot of companies which are quoting at high price to earning multiple. So
वन इज द फॉरवर्ड पी एंड वन इज द ट्रेलिंग पी। उसमें फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल होता है और एक ट्रेलिंग प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल होता है। तो ट्रेलिंग मतलब क्या होता है कि लास्ट लास्ट ईयर का जो भी उसका ईपीएस है उसके ऊपर आप पी कैलकुलेट करो तो उसका है। अगर समझो फॉर एग्जांपल मार्च ईयर एंडिंग है और मार्च का अगर उसका ईपीएस है तो उसका बेस पे समझो पी 100 आया। ओके, और जून क्वार्टर और दिसंबर क्वार्टर, जून क्वार्टर, सितंबर क्वार्टर, दिसंबर क्वार्टर उसने अगर 50% प्रॉफिट ग्रोथ बताया तो उसका फिर वो बोलते हैं फॉरवर्ड पी। तो अगर हम लोग को जो भी पी देखते हैं हम लोग ट्रेलिंग पी देखते हैं तो ट्रेलिंग पी इज मिसगाइडिंग। सो अगर आप ट्रेलिंग पी को देखो तो बहुत बड़ा रहेगा, लेकिन अगर कंपनी ने प्रॉफिट ज़्यादा किया तो उसको फॉरवर्ड पी देखना है आपको। तो फॉरवर्ड पी में आपको क्लैरिटी मिलेगी कि उसका एक्चुअल फ्यूचर अर्निंग गाइडेंस क्या है, उसके बेस पे फॉरवर्ड पी यूज होता है। तो दैट इज द इट इज कॉल्ड एस्टिमेटेड प्राइस टू अर्निंग्स। तो ये सब चीज़ देखना है। ट्रेलिंग प्राइस टू अर्निंग बाय पास्ट परफॉर्मेंस, ये आपका पास्ट परफॉर्मेंस पे ट्रेलिंग पी होता है। ओके, और फॉरवर्ड पी होता है ये आपका फ्यूचर एस्टिमेटेड प्राइस टू अर्निंग्स पे होता है। सो दीज थिंग्स हैव टू बी लुक्ड एट फ्रॉम दिस। So P is used, price to earning ratio is used by investors, means stock market value compared with company's earnings. Okay, so it shows whether market is willing to pay for a stock today based on its past or future earnings. So trailing P is past एंड फॉरवर्ड पी इज फ्यूचर अर्निंग। सो हाई पी रेशियो मतलब अगर आपको लग रहा है ये स्टॉक में बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है, आगे जाके हाई ग्रोथ होने वाला है, तो आप उसको पी हाई दे सकते हो। ओके, और अगर आपको लगता है कि इसका ग्रोथ कम होने वाला है तो उसका पी कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपका समझो एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है और अगर उसका रिजल्ट जो आता है उसमें अगर ग्रोथ कम होता है, जैसे ड्रीम फोक्स का हो गया, ड्रीम फोक्स में बहुत एक्सपेक्टेशन हाई था, 800 900 तक प्राइस गई थी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट में उसका ग्रोथ बहुत कम आया, तो सीधा मार्केट ने उसका नीचे का सर्किट डाल दिया और अभी तक वो 500 500 550 पे अटक रहा है जो 800 पे गया था। तो मार्केट इज रूथलेस। अगर आपका पी अगर हाई है तो आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा उसमें प्राइस बाइंग, बिकॉज उसमें क्या होता है कि अगर आपका जरा भी थोड़ा भी अगर आपका एक्सपेक्टेशन से कम आया रिजल्ट ना, तो उसको फिर मार्केट सीधा क्रैश कर देता है, अगर नीचे का सर्किट लगा देता है। सो ये सब चीज़ हाई पी रेशो में ये सब रिस्क है, ठीक है ना। तो ये सब समझना है। तो इसमें अभी यहाँ पे आप देखोगे तो एक एग्जांपल दिया है कि उन्होंने कंपनी स्टॉक प्राइस इज 242 और 16.85 का ईपीएस है, तो डिवाइड करो तो उसका 14.4 का पी आया। तो दैट इज हाउ यू कैलकुलेट द पी। तो इसमें इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशंस नॉर्मली ऐसे रहते हैं कि पी का अगर ज़्यादा हाई प्राइस अगर रहेगा तो उसका पी ज़्यादा रहेगा, ग्रोथ ज़्यादा रहेगा। तो इसमें अभी ऐसा है कि अभी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हाई पी स्टॉक अगर आपके कौन कौन से है तो उसमें है हिंदुस्तान यूनिलीवर है, जैसे मैंने पहले बताया, ट्रेंड है, केन्स टेक्नोलॉजी एक है वो भी हाई पी स्टॉक है, पॉलीकैब हाई पी स्टॉक है, के ई आई हाई पी स्टॉक है। उसके बाद में सो क्या होता है कि जब मार्केट जैसे जैसे निफ्टी ऊपर जाएगा, जैसे जैसे 24,500 अगर ऊपर ऊपर जाते रहेगा निफ्टी, तो उसका सबका पी बढ़ते जाने वाला है, सब स्टॉक्स का, वेदर इट इज ट्रेलिंग पी और वेदर इट्स अ फॉरवर्ड पी, सबका पी बढ़ेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि मार्केट में डिसाइड करेंगे लोग कि बस ये पी बहुत हाई अनसस्टेनेबल है, ये हम लोग आगे का जो ग्रोथ है, आगे का प्रॉस्पेक्ट्स है कंपनी का, आगे का रोड मैप है, वो इतना हाई डिस्काउंटिंग करके रखा है, उसका हाई वेरी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन हुआ है, तभी ये बुल मार्केट टॉप आउट होता है। बुल मार्केट का टॉप आउट होने का यही रीजन होता है कि एक्सपेक्टेशन बहुत इतना बिल्ड हो गया है लोगों का, और अगर कंपनी का रिजल्ट वैसा नहीं आया, समझो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक बिलो एक्सपेक्टेशन आया, तो वो किसी में वो स्टॉक्स को हैमर करते हैं नीचे। तो ये बुल मार्केट जब तक रहेगा जब तक उसका अर्निंग्स आते रहेगा कंपनीज का, और एज पर एक्सपेक्टेशन आएगा, अगर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहेगा और अर्निंग्स कम आएगा तो भी नीचे आएगा। एक्सपेक्टेशन समझो है और उससे अच्छा रिजल्ट आए तो उससे और भी ऊपर जा सकता है। तो ये बुल रन जो है जब कब तक कंटिन्यू होगा, तो ये तो वही होता है कि अगर आपका सेक्टर पीस बहुत हाई हो गया, सीमेंट, स्टील, एफएमसीजी, ऑटो, आईटी, फार्मा, ये सब सेक्टर्स का, बैंकिंग, एनबीएफसीज, ये सभी सेक्टर्स का जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा वैसे वैसे सबका पी ऊपर जाने वाला है। निफ्टी अगर 24,000 हो गया, सभी सेक्टर का पी ऊपर गया, बिकॉज लॉट ऑफ स्टॉक अगर ऊपर जाते हैं, कंज्यूमर सेक्टर है, एफएमसीजी सेक्टर, सबका पी बढ़ने वाला है। और क्या होता है कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इसमें सेक्टर का पी इतना ज़्यादा होगा कि इन्वेस्टर बोलेंगे हमको अभी बेचना है, हमको ये प्राइस इज नॉट सस्टेनेबल, इसको आगे भी और ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। तो वो केस में वो सेक्टर में उन लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, वो सेक्टर में प्रॉफिट बुक करेंगे। ऑटो में कैसा है, ऑटो में अभी ईवी का स्टोरी चल रहा है, तो ऑटो में तो बाइंग चलेगा।
महिंद्रा महिंद्रा है आपका, टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प है, सब में अभी कैसा है कि पूरा पेट्रोल ड्रिवन टू व्हीलर्स को पूरा ईवी पे डालना है, और टू थ्री व्हीलर्स को भी वैसे करना है, सीएनजी से ईवी में डालना है। तो इसमें तो अभी काफ़ी सारा ग्रोथ हो सकता है, तो इसमें शायद प्रॉफिट बुकिंग ना आए, लेकिन देर आर सम पॉकेट जहाँ पे फ्रॉथी वैल्यूएशन है, वहाँ पे आ सकता है नीचे मार्केट। तो जब भी आपको कुछ भी स्टॉक देखना है तो आपको पी भी देखना पड़ेगा, उसके साथ बाकी भी चीज़ देखनी पड़ेगी। लेकिन ये पी जनरली आपको बता देता है कि ये कितना एक्सपेंसिव स्टॉक है। बुल रन का अभी आपको लग रहा है कि अभी 24,000 टच होगा फॉर एग्जाम्पल, अभी 23,900 वैसा निफ्टी है। निफ्टी बैंक इंडेक्स भी आप देखा कैसे ऊपर आ गया, तो उसमें भी ऐसा है कि एफआईएस का थोड़ा बहुत बैंकिंग में बाइंग आ गया है। लेकिन बैंक्स में क्या होता है कि जैसे अगर आपको लगता है कि एचडीएफसी आईसीआईसीआई कितना ग्रो करेंगे, उनको तो ग्रो करने के लिए लेंडिंग लेंडिंग करते हैं उन लोग, उसका रेट है, और उसका कॉस्ट ऑफ फंड, अगर उसका कॉस्ट ऑफ फंड कम होता है तो उसका अच्छा है, प्रॉफिट है। अगर लेंडिंग रेट बढ़ता है तो प्रॉफिट है। तो ये दोनों अगर सेम रहता है तो उसको, अगर 1400 का एच डी एफ सी बैंक 1700 हो गया, फंडामेंटली कुछ चेंज हुआ है क्या, वो आप सोचो। अगर हुआ है तो आप ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बैंक्स में वही होता है, स्प्रेड के ऊपर खेल है पूरा बैंक्स का। आपका कॉस्ट ऑफ फंड होता है, लेंडिंग रेट होता है, उसके बीच में खेल है। अगर लेंडिंग रेट बढ़ता है तो उसका स्प्रेड बढ़ता है, कॉस्ट ऑफ फंड अगर कम होता है तो उसका स्प्रेड बढ़ता है। तो ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये बैंकिंग में ये अलग ही एनालिसिस करना पड़ता है, हर हर सेक्टर का एनालिसिस अलग है। फार्मा का अलग है, फार्मा में अभी ऐसा होता है कि एफडीआई का जो अगर समझो कुछ ऑडिट ऑब्जर्वेशन आए तो फार्मा स्टॉक क्रैश होते हैं। ये सब चीज़ आपको देखना है। सो इसमें प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल का जो मैंने बोला आपको कि हर सेक्टर में अलग अलग प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है। एक सेक्टर का पी मल्टीपल दूसरे सेक्टर में नहीं चलता है। अगर एक सेक्टर में पी, अगर समझो कोलगेट का पी समझो कल को 30 हो गया तो इट इज़ अ बाय, लेकिन वही अगर एलटी फूड में 30 हो गया तो इट इज़ नॉट अ बाय, इट इज़ अ सेल। तो ये सब चीज़ है। पी अक्रॉस सेक्टर सेम पी आप नहीं कर सकते। अगर आपका एमएनसी में हाई पी है, दैट इज ओके, बिकॉज इट इज अभी तक वैसा ही पी आया है। ओके, तो वो पी ठीक है। एमएनसी में आज ज़्यादा पी रहता है वो, बिकॉज उसमें फ्लोटिंग स्टॉक कम रहता है, बिकॉज 75% फॉरेन होल्डिंग, बाकी एफआई थोड़ा होल्डिंग है, थोड़ा डीआई होल्डिंग है, तो पब्लिक के पास कम रहता है, तो देर इज लो फ्लोटिंग स्टॉक। तो वो भी एक ऑप्शन, वो भी एक कारण रहता है पी का। अगर फ्लोटिंग स्टॉक ही कम है तो पी ज़्यादा रहेगा। आपका गवर्नमेंट का होल्डिंग समझो 90% गवर्नमेंट होल्डिंग है, एफआईएस का 5% है, तो पब्लिक के पास कितना स्टॉक है, फ्लोटिंग स्टॉक है ही नहीं मार्केट में, तो इजीली वो ऑपरेटर उसको खींच सकता है, तो उसमें हाई पी जाएगा। तो वैसे सब आपको ध्यान से देखना है। अगर गवर्नमेंट स्टॉक, गवर्नमेंट ओन कंपनी है, पीएसयू बैंक है, पीएसयू रेलवेज डिफेंस उसमें है, तो उसमें भी आपको पी देखना पड़ेगा कि कितना प्राइस टू अर्निंग है। अगर डायनेमिक मैनेजमेंट है, अगर एक्विजिशन कर रहा है मैनेजमेंट, कंटिन्यूस बेसिस पे इनऑर्गेनिक ग्रोथ कर रहा है, तो उसका पी ज़्यादा होगा। डायनेमिक मैनेजमेंट कंटिन्यूसली उन लोग प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं, सेल्स बढ़ा रहे हैं, तो वो केस में पी ज़्यादा रहने वाला है आपका। अगर कोई मैनेजमेंट अगर कुछ मतलब जैसे चला रही है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं करी, लेकिन ऑर्गेनिक ग्रोथ कम होते जा रहा है, उसका मार्जिन कम होते जा रहा है, लेकिन मैनेजमेंट कुछ नहीं कर रही है, तो वो केस में उसका पी कम होगा। डायनेमिक मैनेजमेंट अगर रहेगी तो पी ज़्यादा रहेगा। तो ये बहुत सारे चीज़ें हैं जिससे पी डिटरमिन होता है। पी पी इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स पैरामीटर। इतना कॉम्प्लेक्स पैरामीटर है कि इसमें कैसे लोग वैल्यू करते हैं वो हर दिन हर क्वार्टर चेंज होता है। ऐसा है। अगर वरुण बेवरेजेस है, उसने एक्विजिशंस किया, मोरक्को में उसने कुछ प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए, उसने अफ्रीका में कोई एक्विजिशन किया, ऐसे एक्विजिशन मोड में अगर जाओगे आप तो उसका पी ज़्यादा रहने वाला है। बिकॉज आपको पता है कि अगर एक्विजिशन करोगे तो उसका सीधा सेल्स ग्रोथ में सीधा ऐड हो जाता है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ बोलते हैं, तो उसका सीधा ऐड होता है। अगर फैक्ट्री लगाओगे, व्हाट इज एन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ, फैक्ट्री लगाओगे, फैक्ट्री पे प्रोडक्शन होगा, ये सब ऑर्गेनिक ग्रोथ है। आप कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, कैपेक्स स्पेंड करोगे। लेकिन आप इनऑर्गेनिक ग्रोथ करोगे, आप एक्वायर करोगे, दूसरी रनिंग कंपनी को एक्वायर करते हो, तो वो केस में सीधा आपका सेल्स में ऐड होता है इनऑर्गेनिक ग्रोथ में। तो अगर कंपनी इनऑर्गेनिक ग्रोथ वेरी एग्रेसिवली करे तो उसका पी ज़्यादा होने वाला है, वरुण का जैसे वैसे। तो ये सब चीज़ें हर कंपनी में पी अलग अलग होता है। तो ऐसा नहीं कि इसका पी अगर समझो 90 का, ये एक ए कंपनी का 90 पी है, दूसरी कंपनी का 90 पी है, तो ये कंपनी अगर अच्छा है लेकिन दूसरा कंपनी ओवर प्राइस हो सकता है, ये कंपनी अंडर प्राइस हो सकता है। तो ये सब चीज़ मार्केट में होते रहता है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। तो मार्केट में ऐसा कोई श्योर शॉट फॉर्मूला नहीं पी का। प्राइस टू अर्निंग रेशो अलग अलग होते रहता है, हर स्टॉक का अलग होते रहता है, और वो एडजस्ट होते रहता है जैसे जैसे अर्निंग्स आएगा, जैसे जैसे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छा दिखेगा, वैसे वैसे प्राइस टू अर्निंग रेशियो चेंज होते रहता है।
सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टुडे डिस्कस अबाउट प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अगर किसी को पी रेशियो के ऊपर अगर कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहा है तो वो गलत है। उसको स्टडी करना पड़ेगा कि पी रेशियो सस्टेनेबल है कि नहीं, उसका ग्रोथ है कि नहीं, ये सब चीज़ देख के फिर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।